رفیق شاہ صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام پہ خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے فنی زندگی کا جو شروعات ہے اس کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ کریم صاحب، میں نے جو میری فنی زندگی ہے اس کا آغاز میں نے 78-79 سے کیا. جی. آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈیو پاکستان میں آڈیشن ہو رہے تھے، تو میں کسی دوست کے ساتھ ایسے ہی آیا تھا. ہوں. چونکہ آڈیشن اس کا تھا تو میں ویسے، اس نے کہا میرے ساتھ چلو، میری آڈیشن ہے اور میں اکیلا ہوں. جی. تو میں اس کے ساتھ آیا. تو وہاں پہ جب ریڈیو پاکستان پہنچ گئے تو میں لان میں بیٹھ گیا اور وہاں پہ ایک چائے منگوایا کنٹین سے. جی. چائے پی رہا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ نکلا، کہتا ہے چلے جی ابھی آڈیشن شروع ہونے والا ہے، آپ لوگ آ جائے اسٹوڈیو میں. تو یہ سارے اٹھ گئے، 20-22 لڑکے تھے. میں بیٹھا رہا. دوست کو میں نے کہا آپ جائیں، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں، جب آپ فارغ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ چلیں گے. تو اتنے میں اس بندے نے کہا آپ کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا سر میرا نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا ہے. کہتا ہے کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد رفیق میرا نام ہے. کہتے ہیں چلے. اس نے اس کاغذ پہ لکھ لیا. جی. اور مجھے بھی اندر لے گیا اسٹوڈیو. جی. تو جب آڈیشن شروع ہوا کرتے 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 لاسٹ میں جب میرا نمبر آیا تو مجھے کہتا ہے آپ شوق رکھتے ہیں کہ آپ ریڈیو میں پروگرام کریں؟ میں نے کہا جی ہاں شوق تو رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ جو آئیڈیا نہیں ہے. کہتے ہیں آئیڈیا ہو جائے گا. تو میں نے تمام لڑکوں کو دیکھا، ان سے تھوڑا بہت میں نے آئیڈیا لے لیا کہ اس طرح پروگرام ہوتا ہے، اور میں خود بھی ریڈیو سنتا تھا. تو جب مجھے بٹھایا گیا، کہتے ہیں آپ نیوز پڑھیں. جی. تو میں نے نیوز پڑھا. صحیح. تو کہتا ہے پھر پڑھے. پھر میں نے پڑھا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا، کہتا ہے آپ ایسے کریے، یہ ڈرامے کے ڈائلاگ ہے، یہ آپ بولیں. وہ ڈرامے کے ڈائلاگ میں نے بولی. پھر اس نے کہا آپ بوڑھے کی آواز نکالو. پھر میں نے بوڑھے کی آواز نکالا. تو اس نے کہا آپ کمپیئرنگ کرو. پھر میں نے کمپیئرنگ کیا. جب آڈیشن ختم ہوا انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ویٹ کریں، ہم آپ کو رزلٹ دیں گے، تاکہ رزلٹ سامنے آئے. جی. تو جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کوئی 5-6 لڑکے روکے، باقیوں کو کہا کہ یار ہم آپ لوگوں کو 1 مہینے کے بعد پھر بلا لیں گے، ٹھیک، آپ لوگ تھوڑی سی تیاری کر لیں. تو ان 6 لڑکوں میں میں بھی تھا. اچھا. اور جو میرا دوست تھا وہ بھی، وہ باقی جو 1 مہینے والے لڑکے تھے اس کو باہر کر لیے. میں نے دل میں کہا کہ میرے دوست نے مجھے پھنسا لیا، خود نکل گیا. خیر یہ تو نصیب کی باتیں ہیں. پھر جب رزلٹ نکلا، کہتا ہے جی محمد رفیق صاحب کون ہے؟ میں نے کہا جی میں. کہتا ہے یار ویل ڈن، زبردست، آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھے نمبرز آئے ہیں، یو آر فرسٹ. صحیح. تو آپ کو انشاءاللہ ہم ہفتے 10 دن کے اندر بلا لیں گے اور آپ کو پروگرام دے دیں گے. تو پھر انہوں نے مجھے پروگرام بیراوی لینگویج کا دیا. خالقی کچہری کے نام سے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اور وہ ریڈیو کا زمانہ تھا. ریڈیو کا زمانہ تھا، بالکل. تو پھر وہ میں نے شروع کیا. بس پھر سلسلہ شروع ہوا. پھر میں نے کمپیئرنگ بھی کیا، پھر میں نے نیوز بھی پڑھی، پھر ٹرانسلیٹ بھی کیا، ڈرامے بھی کیے. اچھا، ٹی وی کی طرف کس طرح آ رہا ہوا؟ ٹی وی کی طرف اس طرح آیا کہ آپ کو اگر یاد ہے، میں نے اور آپ نے ایک اسٹیج ڈرامہ کیا. جی. دیر نوکر دیر خواجہ کے نام سے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل یاد ہے. تو جب وہ قدرتی طور پہ اچھا ہوا تو ایک چٹ ملا کہ جی اس پہ لکھا ہوا تھا کریم بلوچ، GMP TV.
उस ज़माने में कैंट में टीवी हुआ करता जी, था जी, बिल्कुल। स्टेशन। तो 2 दिन के बाद जब हम गए तो वहाँ पे करीम बलूच साहब से जब मिले, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, पर बहुत उन्होंने तारीफ़ की हम्म, कि यार आप लोगों का ड्रामा देगा, मुझे बड़ा पसंद है और आपने बहुत अच्छा काम किया था। जबरदस्त। तो हम आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम कर लें। हम्म, फिर मैंने कहा जी ज़रूर, बिल्कुल करेंगे सर। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर रशीद शहजाद साहब थे और एक चंगेजी जी साहब थे, उनको बुलाया। कहते जी इनका सिफारिश मैं करता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने बड़ी रेस्पेक्ट दिया हमें। हम्म। अल्लाह ताला उनको रेस्पेक्ट दे। अच्छा, इधर भी इस तरह हुआ कि मैं रह गया और आप आगे निकल गए अदाकारी पे? नहीं, अगर मैं आप रह गए, हम्म, मैं निकल गया, तो आपने कोई और रास्ता पकड़ लिया ना। और फिर उस रास्ते पे फिर मैं नहीं आया, आप निकल गए। तो बिल्कुल, ये भी ये तो नसीब की बात नसीब है, की बातें हैं। और फिर अपनी अपनी चॉइस भी है। देखिए, जो अल्लाह पाक ने आपसे काम लेना होता है ना, जा, तो वो फिर आपके लिए आसानियां पैदा करता है। और आप उसके लिए मुंतखब होते हैं। आप उसके लिए जी मुंतखब होते बिल्कुल। हैं। तो मैं अदाकारी के लिए मुंतखब हुआ, सदाकारी के लिए मुंतखब हुआ, आप भी सदाकारी के लिए और राइटिंग के लिए, और फिर सहाफत के लिए, प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन, हैसियत से, प्रोड्यूसर, फिर जीएम। और ये सिलसिले चलते रहे। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा, इससे पहले आप स्टेज पे भी आपने ड्रामे की। जी जी अच्छा, अब ये बताएं कि क्योंकि आपने स्टेज ड्रामा भी किया, रेडियाई ड्रामा, रेडियो पे भी आपने ड्रामे की, जी जी फिर टीवी, जी क्या जी। फर्क है तीनों फ़र्क ये है कि जब स्टेज पे जब आप आते हो ना, आपको उसी टाइम रिस्पांस मिल जाता है। में? ठीक है जी। लोग सामने होते हैं। लोग सामने होते हैं कि आपने अच्छा काम किया, नहीं किया, तो आपका रिस्पांस उसी टाइम आपको मिल जाता है। हम्म, और दूसरी ये है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है आपको, हम्म, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है मैनरिज्म्स को, और जो क्योंकि रीटेक काम होना ही नहीं है है। रीटेक होना ही नहीं हाँ, है। गलती का इम्कान नहीं है। गलती का इम्कान नहीं है कि जी चलो ये सीन या कल करेंगे या परसों करेंगे, ऐसा नहीं है। जी, वो जैसा हो गया वैसा हो गया। सही। अगर आपने मेहनत की है, ख्वारी की है, समझे हैं स्क्रिप्ट को, और जो लिखा हुआ ड्रामा है उसको समझ गए, उसके मैनरिज्म्स को समझ गए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप जुमले अगर आपको याद हुए, और जुमले की तरतीब और जो बोलने का तरीका है वो आपके समझ में आया, तो फिर आप निकल गए। बिल्कुल। और इस तरह रेडियो पाकिस्तान भी ऐसा है कि वो लाइव है, हम्म, उसमें भी आपको बोलने का अंदाज और आपकी वॉइस हम्म, और टाइमिंग, हम्म, ये सब कुछ ताल्लुक़ रखते हैं। और अच्छे अल्फाज आपके पास होने चाहिए। हम्म। और आवाज के जरिए आपने लोगों को लोगों बताना को है, बताना अपने है जी, खुशी का इजहार खुशी के, करना है, बिल्कुल गम का इजहार करना है, बिल्कुल। आवाज की जेर और बम को उसी तरह समझना कंट्रोल चाहिए, करना है। बिल्कुल। इसके बगैर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, टीवी की तरफ तो आपने बता दी। जी जी। अब इसमें आपको मुश्किल कौन सा लगता है? मुश्किल मुझे स्टेज लगता है। कि फौरी उसका रिजल्ट भी सामने है, लोग भी सामने हैं, लोग भी सामने हैं, फूल भी फेंके जाते हैं, और और पत्थर, अंडे भी अंडे भी। जाते हैं। अच्छा, कोई दिलचस्प, अच्छा पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से आपने, बिरावी के तो बहुत से ड्रामे किए, उर्दू के कौन से ड्रामे किए क्वेटा सेंटर से? उर्दू के मैंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, कुछ याद है कुछ नहीं है। जैसे चाकर आजम मैंने किया, शांतुल मैंने किया, हम्म, और बाबा की देश में मैंने किया। हम्म, इसके अलावा कचरा कुंडी कराची से किया, जी, और एक और प्ले था कराची से, मैंने वो भी किया। आ, क्या नाम था, वो नाम मैं भूल गया अभी। जी, तो क्वेटा से मैंने शांतुल किया, शकर आजम किया, जाइए तो बिल्कुल। अच्छा, तलाश किया मैंने, तलाश हुई। और अमर बेल किया मैंने। हम्म। बहुत सारे किए सर।
अच्छा, बलूची के या बिरावी के सबसे ज्यादा कौन से ड्रामे किए, और इसमें ज्यादातर मैं लगता है कि बिरावी में मजाहिया किरदार आपने मज़ाए भी किए हैं और सीरियस भी संजीदा भी किए किया। हैं, संजीदा भी किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर्स किए मैंने। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने अच्छे किए, ये तो लोगों की वो है कि किस तरह वो मुझे पसंद करते पसंद किस करते कैरेक्टर। हैं। जी जी। सर, आपको सबसे ज्यादा आपका कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? सर वैसे तो आर्टिस्ट कभी मुतमईन नहीं होता। हम्म। अगर वो मुतमईन हो गया तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया। सही। मेरा एक उस्ताद था, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, सबके साथ उन्होंने मुझे कहा, रफ़ीक साहब आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। हम्म। मैंने कहा नहीं सर, मैं अच्छा नहीं। कहते बस इसीलिए तो आप अच्छे आर्टिस्ट हो कि आप खुश नहीं हुए। हम्म। बात यह है, आपने किसी की तनकीद से नाराज़ नहीं होना है। सही। अगर आप तनकीद से नाराज़ हो गए तो आप अपनी खामियां नहीं निकाल सकोगे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी के तारीफ से खुश नहीं होना है। अगर आप खुश हो गए तो आप वहीं पे स्टॉप हो गए। हम्म। बस अपना मेहनत जारी रखें और अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छे क्वालिटीज़ दिए हुए हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया सर, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने आप को आर्टिस्ट समझता ही नहीं हूँ। हम्म। ये तो अल्लाह का दीन है, उसकी मेहरबानी है और लोगों का एहसान है मुझ पे कि वो मुझे देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। कोई मुश्किल हालात भी आए आप पे? मुश्किल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई नहीं आया, अल्लाह के फजल से काम में। रिकॉर्डिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया? रिकॉर्डिंग के दौरान मैं एक सीरियल कर रहा था। जी। अ, उसका नाम था बख्तनामा। बख्तनामा। एक सीरियल था बख्तनामा, दोस्त मोहम्मद किशोरी साहब उसके प्रोड्यूसर थे जी। और बड़े अच्छे प्रोड्यूसर थे, बहुत समझने वाले, काम करने वाले। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका एक टाइटल शॉट हमने बनाना है, जी। आपने पहाड़ के ऊपर से दौड़ना है सही। और दौड़ के फिर आपने गिरना है। तो मैं जब दौड़ा, शॉट तो हो गया लेकिन मैं गिर गया, मेरा ये बैक लग गया। हम्म। तो काफ़ी अर्से तक मुझे इससे तकलीफ़ होता रहा। हम्म। फिर थोड़ा बहुत इलाज भी किया, अल्लाह के फजल से फिर ठीक हुई। ये तकलीफ़ मुझे हुई है। एक जमाने में तो मैंने भी ड्रामे किए जो बिरावी के, और एक ड्रामा था दुजी, दूसरी। जिसमें आपने सूबेदार का किरदार अदा किया। जी। तो आपको सच बताएं कि कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और लोगों को अच्छा लगा। असल में मैंने चूंकि मैं करंट अफेयर का प्रोड्यूसर था, लेकिन उसके बावजूद भी शौक था, मैंने ड्रामे भी किए, 13 ड्रामे किए। 13 में सबसे जो बेस्ट ड्रामा था जी जी। वो दुजी था, हारिस दूसरी। का लिखा हुआ। और उसमें आपने जो सूबेदार का किरदार अदा किया कि वो सूबेदार देहात में आ जाता है और उसका करेक्टर कि वो सरदार और टक्करी और जो मीर है उनको भी कटकता है हाँ, अप- हकीकत है। अपने अंदाज के। उसमें भी कुछ ऐसे सीन हुए थे, कोई यादगार सीन याद है आपको? उसमें सर याद है, आपको भी याद है मेरे ख्याल में। हमारे एक आर्टिस्ट थे, हम्म। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो भी, लेकिन थोड़ा समझने में उसको दिक्कत हो रही थी। हम्म। तो वो ऐसा है कि वो वो लकड़ियां लाता है गधे पे। लकड़ियाँ लाता है गधे पे। आप उसको कहते हो कि यार जब आप इधर, जब मैंने कहा क्यों, तो आप गधे को रवाना करो और ऐसे ऐसे कैमरे के सामने से गुजर जाओ। हम्म। तो उसने कहा अच्छा, आपने एक दफ़ा क्यों दिया, गधा रवाना हुआ, वो खड़ा रहा। फिर आपने क्यों दिया, फिर वो गधा रवाना होता है, वो खड़ा रहता है। आखिर में आपने उसको कहा यार, गधे ने मेरे क्यों को समझ लिया, आप नहीं समझे।